Hope all are you fine and safe at home. This is Cordova book, class 5th, term 1 book, from which we are going to learn English subject. In this English subject, these are topics: who will be Ning Thao, the wonderful world, my brother, the brave little kite, Pandora's box, stranger by the window, I have to write a poem, little incidents of life, and how much to remember and grammar. Today we are going to learn this chapter, who will be Ning Thao, Ningthou. Now I am going to tell you summary of this lesson. This is a story of Manipur. In Manipur, there was king called Ningthao and a queen called Lama. This story tells the good qualities of a good ruler. Long ago, in the land of Kanglek Park in Manipur, there lived a Ningthao and Lama. They were loved dearly by their people. They never stopped thinking about their people. They think they think that everybody in Kanglek Park should live in peace, not only people but birds, animals, trees too. The Ningthao and Lema had three sons, Sanjoba, Sanyama, eh, Sanatomba, and a daughter, Sanatombi. She was a lovely child, very gentle and loving. Years went by and the children grew up well. Then one day the Ningthao called his chief minister. He told minister to decide the Tungis Ningthao, the future king. The minister told king what to decide. Your eldest son will be our future king. Then king told, it happened in old days that king's child will become the king, but now we will select a king who is the most worthy of becoming a king. So there was a contest, a horse race. Whoever reached the Kongnang, the banyan tree, he would be declared Tungi Ningthao. Sanajoba, Sanyama, and Sanatomba were expert riders, and all the three reached the finished line at the same time. Sanajoba mounted his horse and he looked at the huge Kongnang standing majestically at a distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. Then the second son, Sanyama, turn came and he rode towards the tree harder and harder. When he was close, he jumped clear over the huge tree and landed on the other side. After that, it was
the turn of the youngest son, Sanatomba. He too rode his horse towards the Kongnang and uprooted it. He victoriously carried the tree to the Ningthao and Lama and laid it at their feet. Ningthao and Lama were watching Sanatombi. She stared sadly at Kongnang, which lay dead on the ground. Birds flapped around it and searching their homes in the tree. She said, Kongnang is dead now. Then the Ningthao stood up. He looked at the three boys and little girl also. Then all declared Sanatombi as the ruler because she feels the pain of other. Everyone looked at the little girl, their future queen. There she stood like a small Kongnang with birds flying all around her. They, they sat on her shoulders and on her head. She smiled at them. He declares Sanatombi the future Lama of Kanglek Park. A Lama is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. Message is a true leader is not someone who has power and strength but who has wisdom to use it correctly and help others. अब मैं आपको इसी लेसन की वो विल बी द निंगथाओ की स्टोरी समरी हिंदी में सुनाती हूँ। एक समय था ये एक समय था यह कहानी एक मणिपुर की है। उस समय एक राजा था निंगथाओ और उसकी रानी लेमा थी जो हर तरह से अच्छा अपने राज्य के लिए अच्छा करने में ही मानते थे। अपने प्रजा को हमेशा खुश देखना चाहते थे और उनकी वो कंगलेक पाक में थी मणिपुर में जहाँ पर वो अपने 3 बेटे और एक बेटी के साथ रहते थे। वो सिर्फ प्रजा के लिए ही नहीं को खुश देखना चाहते थे बल्कि पक्षी और जानवर पेड़ पौधों को भी खुश देखना चाहते थे। निंगथाओ और लेमा के बेटों के नाम सानाजोबा, सानायामा और सानाटोम्बा और उनकी बेटी थी सानाटोम्बी जो बहुत प्यारी बच्ची थी और सबका ध्यान रखने वाली और प्यार करने वाली थी। सालों बीत गए, बच्चे बड़े हो गए। फिर एक दिन निंगथाओ को लगा कि अब किसी बच्चे को राजा चुनना चाहिए। फिर उसने मंत्री को बुलाया कि तुंगी निंगथाओ किसी को चुनना पड़ेगा जो हमारा आगे का राजा बनेगा और उस राजगद्दी पर बैठेगा। मंत्री ने बोला, इसमें सोचने की क्या बात है, जो आपका बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा। तो राजा ने बोला, पुराने ज़माने की तरह नहीं करना है, हमें जिसका जैसा हुनर उसी को ही श्रेष्ठ मानकर राजा बनाया जाएगा। तब मंत्री ने बोला, ठीक है, हम एक स्पर्धा रखते हैं। उस घोड़े की रेस रखेंगे। उस स्पर्धा में
जो जीता वही कोंगनांग की तरफ पहुंचा। कोंगनांग वह एक झाड़ का नाम है, वहाँ पर पहुंचा तो उसे तुंगी निंगथौ माना जाएगा। साना जोबा, सानायामा और साना तोम्बा बहुत होनहार घुड़सवार थे। उन तीनों को बहुत अच्छी घुड़सवारी आती थी और उन्हें पता था कि कैसे उस लाइन तक पहुंचना है और कैसे टाइम से पूरा करना है। साना जोबा जो अपना घोड़ा लेकर चल पड़ा और उसने अंदर वो झाड़ के कोंगनांग के अंदर से निकला और दूर जाके कूद के वहाँ जाकर पहुँचा। और दूसरा बच्चा सानायामा फिर से वो अपना घोड़ा लेकर उस पेड़ की तरफ कूदा और वह पेड़ के पास आकर खुद पेड़ के बाहर चला गया और घोड़ा वहीं रह गया। वह दूसरे तरफ जाके गिरा। फिर उसके बाद छोटे बेटे का टर्न आया। साना तोम्बा जो अपना घोड़ा लेकर उस पेड़ की कोंगनांग के तरफ गया और उसने पेड़ ही गिरा दिया और निंगथौ और लैमा खड़े हो गए और देखने लग गए। उनको देखकर ये उनकी बेटी भी बहुत दुखी हो गई कि कोंगनांग जो झाड़ था वो मर गया और पक्षी भी उड़कर भाग गए घर ढूंढने के लिए। और कोंगनांग मर गया ऐसे बोलकर चिल्लाने लगी। इतने में निंगथौ जो राजा था वो भी खड़ा हो गया और अपने तीनों बेटों को देखने लगा और अपनी बेटी को देखने लगा जो बहुत पेड़ को गिरते और मरते देखकर बहुत दुखी हो गई और पक्षियों का घर टूट गया उससे भी दुखी हो गई। फिर उसने साना तोम्बी को ही अपना राजा माना जो दूसरों के दर्द को समझ सकती थी और सब ने फिर उनकी बेटी को ही अपनी रानी मानकर वहीं पर तुंगी रानी मानकर बिठा दिया। फिर उसने वो कोंगनांग झाड़ को उठाकर खड़ा किया और फिर से पक्षी उस झाड़ पर बैठ के अपना घोंसला देखने लगे। फिर वही पक्षी उस साना तोम्बा के सिर पर और कंधे पर बैठ के मंडराने लगे और वह भी उनको देखकर बहुत खुश हुई। फिर साना तोम्बी को ही एक लैमा नाम दे दिया गया कंगले पाक के। वो लैमा वो होती है जो दूसरों के दर्द को समझती हो। इससे हमें यह सीखने मिलता है जो अपनी ताकत बताए वही एक सच्चा लीडर नहीं होता है, बल्कि जो अपना सबके लिए सबका दुख समझता हो और सबको मदद करता हो वही सच्चा लीडर होता है। Who will be Ningthau? Long, long ago, in the land of Kanglek Park in Manipur, Kangleipak, Kanglek Park in Manipur, there lived a Ningthau, Ningthou, Ningthau, and a Lama, Lema. They were loved dearly by the people.
वो अपनी प्रजा से उनकी प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। दे ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, MEEYAM, मियाम, देयर पीपल। वो कभी भी ऐसे अपनी प्रजा के लिए ना सोचे, उसके लिए वैसा ना चले। आवर मियाम शुड बी हैप्पी, मतलब उसकी प्रजा पहले खुश होनी चाहिए। एवरीबडी इन कंगलेक पार्क शुड लिव इन पीस, उसे था कि उसकी प्रजा हमेशा खुश रहे, और उस खाली उसकी प्रजा ही नहीं, और पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे सभी। The Ningthao and Lama had 3 sons, Sanajoba, Sanayama and Sanatomba, and a daughter, Sanatombi. SANAJAOBA, Sanajoba, SAN। ये तीनों लड़के और उनकी लड़की बहुत सुंदर और अच्छे बच्चे थे। शी वॉज अ लवली चाइल्ड, वेरी जेंटल एंड लविंग। उनकी बेटी बहुत प्यारी और वफ़ादार और सबको प्यार करने वाली थी। Years went by and the children grew up well. Then one day the Ningthao called his chief minister, 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 CHIEF, chief। बहुत साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए, फिर निंगथाओ ने अपने मंत्री को बुलाया। It is a time to decide the Tungi, TUNGGGI, Tungi Ningthao, NING Ningthao, THOU, the future king। उसने बोला कि निंगथाओ का कोई एक राजा बनाना है जो अपने इस राज्य को संभाले। What is there to decide? Your eldest son will be our future king। उसने बोला इसमें क्या सोचना कि आपका जो बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा। That's how it happened in olden days, but today we will select a king who is the most worthy, WORTHY, of becoming a king। मतलब हमें काबिल इंसान को ही राजा बनाना है। So there was a contest, a horse race। Whoever reached the Kongnang, the banyan tree first, would be declared Tungi Ningthao। उसने बोला हम एक स्पर्धा रखेंगे घोड़ा रेस की, जिसमें जो कोंगनैंग झाड़ का नाम था और पहुँचेगा उसको तुंगी निंगथाओ बोलेंगे। सानाजोबा, सानायामा and Sanatomba were expert riders, and all three reached the finish line all three reached the finish line at the same time। ये तीनों बच्चे एक बहुत होशियार घुड़सवार थे, इसीलिए वह एक ही टाइम पे तीनों साथ में पहुँचे। सानाजोम्बा mounted his horse and held his spear straight in front of him। वो झाड़ के बीच में से घोड़े के ऊपर बैठकर निकल आया। He looked at the huge Kongnong standing majestically at a distance। वो ऐसा ही झाड़ खड़ा था और उसके बीच में से सानाजोबा निकल आया। He pierced the tree and jumped his
हॉर्स राइट थ्रू इट, उसमें से बाहर निकल आया और जंप होके बाहर होके खड़ा हो गया। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द second son, Sanayama. He rode towards the tree harder and harder. When he was close, he jumped clear over the huge huge tree and landed landed on the other side. जो दूसरा बेटा था सानायामा, जो ट्री की तरफ दौड़ा घोड़ा लेकर, लेकिन वो खुद चला गया उस तरफ और घोड़ा पेड़ के इस तरफ ही रह गया। Now it was the turn of youngest son, Sanatomba. He too rode his horse towards the Kongnang and uprooted it. Trumpetly he carried the tree to the Ningthao and Lama and laid at their feet. जो छोटा बेटा था वो तो झाड़ तोड़कर अपने माँ बाप की तरफ लेकर गया और उनके कदमों में रख दिया। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, सब देखकर चौंक गए। वाई वर द निंगथाओ एंड लैमा टेकिंग वाई वर द निंगथाओ एंड लैमा टेकिंग so long to make the announcement. उनकी प्रजा में सभी लोग यही बातें करते थे कि क्यों सोच में पड़ गए हैं राजा बनाने के लिए हमारे राजा और रानी। The Ningthao and Lama were watching Sanatombi. She stared sadly at the Kongnang which lay dead on the ground. वो जो उनकी बेटी थी दुखी होकर सानातोम्बी उस पेड़ को उठाने लग गई और किंग कोंगनैंग को खड़ा करने लगी, जिस पर फिर से पक्षी जो उड़ गए थे वापस उस पेड़ पे आकर उड़ने लगे, जिनके घर भी टूटकर नीचे गिरे। सर्चिंग ऑफ देयर होम्स इन द ट्री, the Ningthao stood up. He looked at the three boys. He looked at the little girl. जो निंगथाओ राजा था वो अपने बेटों को और अपनी छोटी बेटी को देखने लगा। The Kongnang is dead. It was first hurt by the spear and now it is dead. उसने बोला चिल्ला के बेटी ने कि अब पेड़ मर गया। If anybody is worthy of becoming the ruler, it is Sanatombi. Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of people, the animals, the birds and the trees. उसने बोला अगर कोई बनेगा अगर राजा तो ये सानातोम्बी ही इस राज्य की रानी बनेगी, जो दूसरों का दुख समझती हो और दूसरों को मदद करती हो। A silence felt, silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. सब उसी को ही देखने लग गए कि ये छोटी बच्ची हमारी रानी है। Then there she stood like a small Kongnang with birds flying. ऐसा लग रहा था जैसे वो ही पेड़ हो, उसके ऊपर पक्षी मंडराने लगे। Around her they sat on her shoulders, 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 and on her head she smiled at them. सब कोई उसके कंधे पे बैठने लगे, कोई सिर पे, और इससे ये खुश होकर उनको स्माइल देने लगी। A llama is one who does not hurt anybody in the kingdom.
आई डिक्लेयर सानातोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कंगलेकपा। उसने उस राजा ने लेमा को ही सानातोम्बी को ही लेमा कंगलेकपा का लेमा चुना, और क्योंकि लेमा वो होती है जो दूसरे के दुखों को समझे और उन्हें मदद करे। मैसेज: A true leader is not someone who has power and strength, but one who has the wisdom to use it correctly. वो ट्रू लीडर होता है जिसको ना के ताकत हो, बल्कि वो होता है जो सबको संभाल सके और दूसरों के दुखों को समझ सके। डिक्शनरी की मीनिंग्स है जो आपको लिखनी है, मैं अच्छे से समझा देती हूँ। अनाउंसमेंट: अ रिटन और अ स्पोकन स्टेटमेंट टू इन्फॉर्म अबाउट चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ मिनिस्टर, जो बड़ा मंत्री हो। कॉन्टेस्ट: कॉम्पिटिशन इन विच पीपल टू विन समथिंग, मतलब कोई स्पर्धा हो जिसमें जीत अपना चुनना हो। डिक्लेयर्ड: सेड समथिंग पब्लिकली ऑफिशियली, मतलब सबके सामने घोषित करना कुछ। डिस्टेंस: स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस और थिंग्स, दो जनों के बीच में जगह। एक्सपर्ट: अ पर्सन विथ अ स्पेशल स्किल, जो किसी चीज़ में माहिर हो। फ्लैप्ड: मूव समथिंग क्विकली अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब कोई चीज़ ऐसे इस तरफ से लेके उस तरफ जाए। फ्यूचर: द टाइम दैट विल कम आफ्टर द प्रेजेंट। ह्यूज: वेरी लार्ज इन साइज। मैजेस्टिकली: टू लुक इम्प्रेसिव बिकॉज ऑफ साइज और ब्यूटी, कोई किसी चीज़ पे आकर्षित होना उसके साइज़ और उसके रूप रंग पे। माउंटेड: क्लाइंब्ड ऑन समथिंग, कोई पहाड़ चढ़ना। पायस्ड: मेक अ होल इन समथिंग। रेस्टलेस: अनेबल टू स्टे स्टिल, कहीं पे हिल ना सके हों। सर्चिंग: ट्राइंग टू फाइंड समथिंग, कोई चीज़ ढूंढना। स्पीयर: अ वेपन विथ अ लॉन्ग वुडन हैंडल, कोई लकड़े का वेपन, ऐसा कोई उस औजार हो जिसमें लकड़े का बना हुआ हो, जिसका हैंडल लकड़े का बना हुआ हो। स्टेयर्ड: लुक्ड एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ को एक ही नज़र से गौर करते रहना। ट्रिम्पेटली विक्टोरियसली, मतलब जीतना। अपरूटेड: पुल्ड आउट ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन से उखाड़ देना। वर्दी: हैविंग द क्वालिटीज़ दैट डिज़र्व समथिंग, मतलब किसी की काबिलियत देखना कि किस तरह से वो काम कर सकता है। यही आपको मीनिंग्स है जो आपको अपनी नोटबुक में लिख कर रखनी है।